students, this is Radhika Gaur with the session number 11 of a chapter Heredity and Evolution. तो अभी हम यहाँ पे सेशन नंबर 11 डिस्कस करने जा रहे हैं, in which we are going to discuss about question answers of session 1, that is question answers of SAT 1. Obviously, as always, I have divided these question answers in two sets. In SAT 1, I will be discussing about the in-text questions. In SAT 2, I will be discussing about the exercise questions. So let's start the session with the question number 1. That is, if a trait A exists in 10% of the population of an asexually reproducing species and a trait B exists in 60% of the same population, which trait is likely to have arisen earlier? That is, question क्या है कि सपोज करो दो ट्रेट्स हैं, ट्रेट A एंड ट्रेट B. जो ट्रेट है वो 10% ऑफ पॉपुलेशन में एग्जिस्ट करती है सेक्सुअली रिप्रोडक्टिव स्पीसीज की, जबकि जो ट्रेट B है वो 60% ऑफ सेम पॉपुलेशन में एग्जिस्ट करती है. देन विच ट्रेट इज लाइक टू बी हैव अराइजन अर्लियर? तो कौन सी ऐसी ट्रेट है जो पहले होने के चांसेस हैं? Then the trait B is likely to have arisen earlier as percentage of any gene in a population increases from generation to generation. तो आंसर क्या होगा? ट्रेट B. क्योंकि ट्रेट B क्यों होगी यार, क्यों अराइज होगी जल्दी? क्योंकि जो परसेंटेज होता है किसी भी जीन का किसी भी पॉपुलेशन में वो इंक्रीज होता रहता है जनरेशन टू जनरेशन. क्लियर that the trait B is likely to have arisen earlier as percentage of any gene in population increases from generation to generation. Now the question number 2 is, how does the creation of variation in a species promote survival? जो वेरिएशन होने का जो क्रिएशन है, how does the creation of variations in a species promote survival? वो सर्वाइवल को प्रमोट कैसे करता है? Actually, during reproduction, copying of DNA takes place, which is not 100% accurate, thereby causing variations. Reproduction में क्या होता है? Reproduction में DNA की कॉपी होती है. जो DNA कॉपिंग होती है जो वो 100% एक्यूरेट नहीं रहती, क्योंकि एक गैमेट मेल से ट्रांसफर होता है और एक गैमेट फीमेल से ट्रांसफर होता है. thereby they cause variations. इसी की वजह से वेरिएशंस आते हैं और वेरिएशंस प्रमोट सर्वाइवल. जो वेरिएशंस हैं वो सर्वाइवल को प्रमोट करते हैं. तो समझ में आया that why the creation of variation in a species promote survival? This happens in this way, that during reproduction copying of DNA takes place, which is not 100% accurate, thereby causing variations. Next question is, how is the sex of a child determined in human beings? Human beings में किसी भी child का sex कैसे determine किया जाता है? The determination of sex occurs largely by genetic control in human beings. Human beings में जो sex determination है वो किसकी वजह से होता है? Genetic controls की वजह से होता है. The genes inherited from the parents determines the sex of the individual. वो genes जो parents से inherit की गई हैं किसी भी individual में, वही क्या करती हैं? वही जो individual है उसके sex को determine करती हैं. Actually, in human beings there are 23 pairs of chromosomes, out of which 22 pairs are autosomes and 1 pair is sex chromosome. Human beings में क्या है? 23 pair of chromosomes होते हैं, जिनमें 22 pairs autosomes होते हैं, जबकि एक pair chromosome होता है. These sex chromosomes vary in males and females. ये जो sex chromosomes होते हैं ये males और females में vary करते हैं. A male has 1 X and 1 Y chromosome. जो male होगा उसमें एक X chromosome present होगा, एक Y chromosome present होगा. A female has 2 X chromosome, जबकि जो female है उसमें दोनों X chromosomes होंगे. The sex of the children will be determined by the inherited from their father. सेक्स किस पे डिपेंड करेगा कि उसने कौन सा जो क्रोमोसोम है वो अपने फादर से इनहेरिट किया है. अ चाइल्ड हु इनहेरिटेड एक्स क्रोमोसोम विल बी अ गर्ल. वो चाइल्ड जो एक्स क्रोमोसोम इनहेरिट करेगी वो गर्ल होगी. दैट जबकि द वन हु इनहेरिटेड वाई क्रोमोसोम विल बी अ बॉय. जबकि वो जो वाई क्रोमोसोम इनहेरिट करेगा वो बॉय होगा. क्लियर? एग्जाम्पल के लिए गैमेट है जिसमें जो स्पर्म है वो एक्स और वाई दो क्रोमोसोम्स रखता है, जबकि जो ओवा होता है उसमें दोनों एक्स ही प्रेजेंट रहते हैं. तो यदि एक्स एक्स की पेयरिंग होगी तो फीमेल चाइल्ड डेवलप होगा और वाई एक्स की पेयरिंग होगी तो मेल चाइल्ड डेवलप होगा. क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट आर द डिफरेंट वेज इन विच इंडिविजुअल्स विद अ पर्टिकुलर ट्रेट्स में इंक्रीज इन अ पॉपुलेशन? कौन से ऐसे डिफरेंट वेज हैं जिसमें कोई भी इंडिविजुअल किसी भी पर्टिकुलर ट्रेट में इंक्रीज इन पॉपुलेशन में इंक्रीज हो जाता है? When a color variation arises during reproduction, it can pass the color to its progeny
which may protect them from pros. सिंपली हमने बीटल्स के एग्जाम्पल पढ़ा था, उसमें हमने ये वाली चीज डिस्कस करी थी कि जब भी कोई कलर वेरिएशन अराइज होता है तो क्या होता है कि वो जो कलर वेरिएशन अराइज हो रहा है तो जो रिप्रोडक्शन के थ्रू जो प्रोजेनी है उसको डिफरेंट कलर पास कर दिया जाता है, जो प्रोजेनी है उसको जो प्रे होगा उससे प्रोटेक्ट करके रखेगी. Also, accidents in small population can change in frequency of some genes in the population, even if they give no survival advantage. और जो accidents होते हैं कोई भी small population में, वो जो frequency है किसी भी same organism की population में उससे change कर सकते हैं, even though they do not give any survival advantage. That is ये genetic drift वाला reason आ गया हमारा. And poor nourishment may reduce the population of individual. जो poor nourishment होती है वो किसी भी इंडिविजुअल की पॉपुलेशन को रिड्यूस तो कर सकती है, बट व्हेन नरिशमेंट कंडीशंस इंप्रूव, लेकिन जब नरिशमेंट कंडीशंस इंप्रूव हो जाएंगी ना पॉपुलेशन स्टार्ट इंक्रीजिंग अगेन, तो जो पॉपुलेशन है वो अगेन से इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी. इसीलिए म्यूटेशन, एडेप्टेशन टू एनवायरनमेंट एंड नेचुरल सिलेक्शन में इंक्रीज इन पर्टिकुलर ट्रेट इन अ पॉपुलेशन. इज दैट क्लियर टू यू? नेक्स्ट क्वेश्चन इज Why are traits acquired during the lifetime of an individual not inherited? क्यों वो traits जो कोई भी individual acquire करता है during a lifetime of an individual are not inherited? Simple है, the characters developed during the lifetime of an individual that cannot be passed to its progeny are termed as acquired traits. Acquired traits वो characters होते हैं जो कोई भी individual अपने lifetime में achieve करता है, that is जो उसकी progeny में pass नहीं हो सकते. क्लियर? दे कैन नॉट बी ट्रांसफर टू इट्स प्रोजेनी. ये जो एक्वायर्ड ट्रेट्स रहते हैं ये इनहेरिटेड नहीं होते. उसका सिंपल सा रीजन है बिकॉज दीस ट्रेट्स आर नॉट पास टू द डीएनए ऑफ द जर्म सेल्स. इसका रीजन क्या है? क्योंकि ये जो ट्रेट्स हैं वो जो जर्म सेल्स हैं उनके डीएनए में पास आउट नहीं किए जाते. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज why are the small numbers of surviving tigers a cause of worry from the point of view of genetics? क्यों जो स्मॉल नंबर है सर्वाइविंग टाइगर्स का वो एक कॉज ऑफ वरी है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ जेनेटिक्स. एक्चुअली small numbers of surviving tigers are a cause of worry because their decreasing number would cause a decrease in set of genes, that is many genes will be eliminated. ये क्यों है? क्योंकि जो स्मॉल नंबर है सर्वाइविंग टाइगर्स का वो कॉज ऑफ वरी है क्योंकि क्या हो रहा है कि जो टाइगर्स हैं उनका नंबर डिक्रीज होता जा रहा है. क्लियर? दैट इज जो उनके सेट ऑफ जीन्स हैं उनके नंबर डिक्रीज होते जा रहे हैं. उसकी वजह से क्या होगा? काफी सारे जीन्स एलिमिनेट हो जाएंगी, काफी सारी स्पीसीज एक्सटेंट हो सकती हैं. Thereby it is a cause of worry. और ये किसकी वजह से हो रहा है? ये सिर्फ इसकी वजह से हो रहा है क्योंकि जो टाइगर्स हैं वो अनफिट हैं टू स्ट्रगल एट प्रेजेंटली. दैट इज जो एनवायरमेंटल चेंजेस हो रहे हैं वो उनको फेवर नहीं कर पा रहे हैं. Thereby उनकी जो स्पीसीज है वो एक्सटेंट होती जा रही है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट फैक्टर्स कुड लीड टू द राइज ऑफ अ न्यू स्पीसीज? कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से कोई न्यू स्पीसीज राइज हो सकती है? सो जेनेटिक ड्रिफ्ट एंड नेचुरल सिलेक्शन could lead to the rise of a new species. That is या तो जेनेटिक ड्रिफ्ट हो जाए या नेचुरल सिलेक्शन हो, ये दोनों ही क्या कर सकते हैं? ये दोनों ही न्यू स्पीसीज को राइज कर सकते हैं. सो द जेनेटिक ड्रिफ्ट एंड नेचुरल सिलेक्शन could lead to the rise of a new species. Next question is will geographical isolation be a major factor in the speciation of an organism that reproduces asexually? Why or why not? Actually no, because asexual reproduction involves only a single parent and does not require any other organisms to carry out reproduction. asexual reproduction में क्या होता है? asexual reproduction में सिर्फ एक ही पेरेंट की रिक्वायरमेंट होती है, दैट इज किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म की दूसरे जो मतलब टाइम टू से अदर पेरेंट की रिक्वायरमेंट नहीं होती. जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो सिंगल पेरेंट से ही होता है, इसीलिए रिप्रोडक्शन कैरी आउट करने के लिए उसे किसी अदर ऑर्गेनिज्म की रिक्वायरमेंट नहीं होती. सो जियोग्राफिकल आइसोलेशन डज नॉट अफेक्ट इट्स रिप्रोडक्शन साइकिल. इसीलिए जो जियोग्राफिकल आइसोलेशन है वो इसकी जो सेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म है उनकी रिप्रोडक्शन साइकिल पे कोई भी अफेक्ट नहीं करेगा. नेक्स्ट क्वेश्चन इज will geographical isolation be a major factor in speciation of a self-pollinating plant species? Why or why not? क्या जो geographical isolation है वो self-pollinating plant species की speciation में major factor रखेगा? No, because self-pollinating plants receive pollen grains from the same flower or anther flower on the same plant and its distance from other plant hardly affects its population. क्यों नहीं होगा? क्योंकि जो सेल्फ पॉलिनेट
पॉलिनेटिंग प्लांट्स हैं वो पॉलन ग्रेन्स कहाँ से अचीव करते हैं? वो पॉलन ग्रेन्स अपने ही फ्लावर से रिसीव करते हैं या फिर अपने ही प्लांट के किसी दूसरे फ्लावर से रिसीव करते हैं, क्योंकि अब उनमें जो पॉलन ग्रेन्स के आने का जो प्लेस है उसमें और जो प्लांट का जो फ्लावर जिस पे पॉलन ग्रेन्स को हमें पहुंचाना है दैट इज डेस्टिनेशन में, और जहाँ से वो डेस्टिनेशन पे पॉलन ग्रेन्स आ रहे हैं उस डेस्टिनेशन में कोई भी डिस्टेंस नहीं है। डिस्टेंस ना होने की वजह से जो ज्योग्राफिकल आइसोलेशन है वो कुछ भी अफेक्ट नहीं करेगा, दैट इज जो सेल्फ पॉलिनेटिंग प्लांट्स हैं उनमें ज्योग्राफिकल आइसोलेशन है वो कोई भी मेजर फैक्टर नहीं रखेगा। So the next question is, give few examples of characteristics being used to determine how close two species are in evolutionary terms. आपको कुछ एग्जाम्पल्स देने कैरेक्टरिस्टिक्स के जो यूज होते हैं ये डिटरमाइन करने में कि कितनी क्लोज दो स्पीसीज हैं इन इवोल्यूशनरी टर्म्स। सो वो कौन कौन से ऑर्गन्स के बारे में हमने स्टडी किया था? हमने होमोलोगस ऑर्गन्स, एनालोगस ऑर्गन्स, वेस्टिजियल ऑर्गन्स के बारे में स्टडी किया है, एंड यही तीनों एग्जांपल्स हैं ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स बीइंग यूज्ड टू डिटरमाइन हाउ क्लोज टू स्पीसीज आर इन इवोल्यूशनरी टर्म्स। Next question is, can the wings of a butterfly and wings of a bat be considered homologous organs? Why and why not? क्या जो बटरफ्लाई के विंग्स रहते हैं, जो होमोलोगस ऑर्गन्स हैं उनके विंग्स रहते हैं, जो बटरफ्लाई के विंग्स होते हैं और जो बैट है उसके विंग्स होंगे, क्या उन्हें होमोलोगस ऑर्गन्स कंसिडर किया जा सकता है? एक्चुअली बटरफ्लाई बिलोंग्स टू फाइलम आर्थ्रोपोडा। बटरफ्लाई किससे बिलोंग करती है? फाइलम आर्थ्रोपोडा से, जो कि विच हैव अ cutaneous skeleton, जिसमें एक cutaneous exoskeleton प्रेजेंट होता है। The bat belong to class Mammalia, जो बैट है वो क्लास मैमेलिया से बिलोंग करती है, which have wings of skin, जिसके जो विंग्स रहते हैं वो स्किन के रहते हैं, that is दोनों की ओरिजिन क्या है? डिफरेंट है। अब दोनों की ओरिजिन डिफरेंट है, that since both use their wings to fly, लेकिन क्या करते हैं दोनों ही अपने विंग्स का फ्लाई के लिए यूज करते हैं, do not share any resemblance in their wing structure, लेकिन उनकी स्ट्रक्चर डिफरेंस है, that is जो विंग्स हैं बैट के और बटरफ्लाई के उनकी स्ट्रक्चर डिफरेंस है, उनकी ओरिजिन डिफरेंस है, लेकिन जो उनके फंक्शंस हैं वो उनके सेम है, इसीलिए उन्हें होमोलोगस नहीं किया जा सकता, बट हाँ उसे एनालोगस ऑर्गन्स हम कह सकते हैं। that is एनालोगस ऑर्गन्स क्या होते थे? वो ऑर्गन्स हैविंग सिमिलर फंक्शंस बट डिसिमिलर स्ट्रक्चर, तो इसीलिए उन्हें हम एनालोगस ऑर्गन्स कहेंगे, ना कि होमोलोगस ऑर्गन्स। क्लियर? दैट बैट के विंग्स और जो बर्ड्स के विंग्स हैं उन्हें हम होमोलोगस ऑर्गन्स नहीं एनालोगस ऑर्गन्स बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट आर फॉसिल्स? व्हाट डू दे टेल अस अबाउट द प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन? फॉसिल्स क्या होते हैं और वो हमें इवोल्यूशन के प्रोसेस में के बारे में क्या बताते हैं? एक्चुअली these are the dead and decayed remains of organisms from the geological past। ये क्या होते हैं? ये dead और decayed remains हैं organism के, जो हमें geological past के जो organism हैं उनके जो remains हैं उनसे देखने को मिलते हैं। that is जो हमारे geological past, जो हमारा past था उसमें जो organism थे जो dead हो जाते थे, जो dead organisms थे उनके decay होने से जो remains मिले उन्हें हम fossils बोलेंगे। that is preserved traits of living organisms that lived millions of years are called fossils। तो fossils क्या होते हैं? वो preserved traces हैं living organisms के जो बहुत साल पहले अर्थ पे रहते थे। Actually, fossils records help us to analyze the connection between the earth and earth's life evolution। जो fossils record हैं वो हमें इसमें हेल्प करते हैं कि जो हम अर्थ और लाइफ इवोल्यूशन के बीच का जो कनेक्शन है उसको एनालाइज कर पाए, एंड बाय दिस वी कैन रिकंस्ट्रक्ट द पैटर्न एंड ट्रेंड दैट एक्सिस्टेड इन द हिस्ट्री ऑफ लाइफ। और इसके थ्रू जो हम क्या रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, इसके थ्रू उन पैटर्न्स उन ट्रेंड्स को हम रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हैं जो हमारे पहले लाइफ में, दैट इज जो हिस्ट्री है हमारी उसमें एग्जिस्ट करते थे। क्लियर? दैट फॉसिल्स रिकॉर्ड हेल्प अस टू एनालाइज द कनेक्शंस बिटवीन अर्थ and life's evolution, and by this we can reconstruct the patterns and traits that existed in the history of life. So what did we learn today? Today we solved around all the questions of the in-text book. In next session we will be discussing about the rest questions of in-text and exercise questions. Till then, good luck.